I'd like to welcome you all for the question and answer session. And Didi, सबसे पहले आपका बहुत बहुत welcome and thank you so much, Didi, for always coming and answering our questions. Radhe Radhe. Already raise hands हो गए हैं, which is very good. और अगर आप लोगों को कोई भी question है, please up top right emoji है, raising hand. You could raise your hand, ask questions. आपके questions हम सबको बहुत help करते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम है कि आप नहीं पूछ पा रहे डायरेक्ट, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी और मैं आपके बिहाफ पे पूछ दूंगी. And we will now get started. Pooja, yes, we left you last time. I'm sorry, we'll start with you this time. So go ahead, ask your question. Radhe Radhe, Didi. Good morning. Radhe Radhe. Okay, I have a question. So when I went to Guru Dham inauguration, for the first time, I received Maharaji's Charanamrit. And somebody over there was saying, this is Maharaji's like real Charanamrit. And I wasn't sure what that meant, but I know it's important. And it's two-part question. So one, I wanted to know from you, like how I should, I don't know, be excited to have some and how I should use it. But also a part of me feels like maybe I should drink all of it before I die. And then some devotees, like they drink one drop at a time. So I don't know. I just wanted to talk to you about that. Charanamrit of Guru is the most important thing of spiritual significance, because the most important part in our body, in the body of Mahapurush and God, is Charan. So when we wash the Charan of Guru or Charan of God, so it means we are having the water of all the sacred places, Tirth. Because Tirth means the places where God or the great saints like Sri Maharaj Ji stepped. It means there is some significance of his Charan. Wherever God goes, wherever Mahapurush goes, it becomes a Tirth. And instead of going to every Tirth, we are having the Charanamrit of directly from Sri Maharaj Ji's Charan. So the water of all the Tirth is there. So when we drink it with the same feeling that this is the water of God himself. Mahapurush is also God himself. Janat tumahi tumahi hai jai. So when we are drinking Charanamrit with the feeling that this is the Charanamrit of God himself, and I am so lucky, I am so blessed that I am getting it directly on this earth. How many people can get it? Imagine. How fortunate you are. How blessed you are that you are getting it. I'm so blessed. When you feel like that, with this kind of feeling, when you drink the Charanamrit, every time when you drink Charanamrit, just feel like the Charanamrit is coming direct from the Charan of Sri Maharaj Ji, and it is directly going towards heart to purify it. Then you can have a great benefit of Charanamrit. And actually, the other people who have not seen Maharaj Ji, or those who have no respect for Maharaj Ji, you should not even tell about this to them, because they cannot be that respectful to that. If they are not respectful, they will say something wrong about Charanamrit, then it will again confuse you. You better never talk to them about it. You have Shraddha. You keep it for yourself. You drink it. You do Roop Dhyan. You attain maximum benefit of it. But how often should I drink it? Like what? I feel like I'm afraid I'll die before I finish drinking No, you take, if you take little by little,
every day and whenever you want. So every day you will remember the same. You will have a chance. Remember Mahaji's Charan. Will to feel it again and again. That what am I drinking now? How blessed I am. Mhm. If you drink it once only, the whole thing, then you will not get this chance again and again. That's true. That's why it is good to drink it little by little. Okay. Thank you, Didi. Jai Shri Radhe. Thank you, Pooja. Beautiful question. And that reminds me that I also have to drink it every day. The next question is, Didi, वो पूछ रहे हैं कि what is the difference in the attitude of devotee with madhu sneh और घृत स्नेह? और महाराज जी ने कोई लक्ष्य स्नेह भी कुछ कहीं मेंशन किया है, तो वो उनके बारे में डिफरेंस जानना चाहते हैं. What is the difference between devotees and who? नहीं दीदी, मधु स्नेह, घृत स्नेह और फिर उन्होंने बोला लक्ष्य स्नेह, ये उन्होंने महाराज जी से सुना है कहीं. मधु स्नेह, घृत स्नेह, ये इनमें क्या डिफरेंस क्या है? मधु स्नेह, घृत स्नेह. घृत माने होता है घी. तो घी जो है उसमें अपना कोई टेस्ट नहीं होता, या उसमें चीनी, गुड़, नमक, कोई ऐसी चीज मिला दी जाती है तो उसका टेस्ट हो जाता है. तो इसी प्रकार जब प्रेम हमें भगवान के दर्शन से, उनका प्यार मिलने से, उसे रिस्पेक्ट मिलने से बढ़ता है, तो वो घृत स्नेह कहलाता है. यानी उनका अनुकूल व्यवहार हमको मिलता रहे, उनका दर्शन मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, तो बढ़ता है प्रेम. ऐसे प्रेम को घृत स्नेह कहते हैं. और मधु शहद तो अपने आप में मीठा होता है, उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए किसी और चीज की बाहर से जरूरत नहीं पड़ती. तो वो प्रेम जो केवल प्रेम के लिए, हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, ये उनकी इच्छा है, वो हमको अपना सानिध्य, अपना प्रेम, अपना स्पर्श आदि देते हैं कि नहीं देते हैं. वो जिस तरह भी खुश हैं, हम क्योंकि प्रेम है हमारा उनसे, तो हम सदा प्रेम में आनंदित हैं. हम उनसे प्रेम कर रहे हैं, हमें उनकी सेवा का अवसर मिल रहा है. जिस तरह वो खुश रहें, जिस प्रकार उन्हें खुशी हो वही करना, इसी का नाम प्रेम है. वो मधु स्नेह कहलाता है. गोपियों का मधु स्नेह है. तो दीदी मधु स्नेह मतलब ऐसे हुआ कि सेल्फलेस लव, जैसे जो महाराज जी बोलते हैं, उसी को मधु स्नेह बोलेंगे. और फिर घृत स्नेह हुआ. घृत स्नेह मुझे फिर थोड़ा कंफ्यूज हो गया. इसमें सकामता हो, जो उनके सानिध्य से बढ़े और सानिध्य ना मिलने से ना बढ़े, उसको घृत स्नेह कहते हैं. ओके. और दीदी एक थर्ड टाइप का भी कुछ होता है, लक्ष्य स्नेह उन्होंने पूछा है. लक्ष्य. अच्छा, मुझे वर्ड नहीं मालूम, उन्होंने लिखा है दीदी थर्ड, कि ये कोई थर्ड टाइप का जो होता है. लाक्षा जो होती है, जो एलमी जिसको, जिसे मोहर वगैरह लगाते हैं पिघला के ना, तो गर्मी बाहर की पाकर वो पिघल जाता है, उसमें जो भी रंग डालो वो चला जाता है. तो ऐसे ही जब भगवान मिलते हैं तो उनके सानिध्य से, प्रेम से, उनके द्वारा सम्मान पाकर प्रेम हमारा बढ़ता है. और जब वो नहीं मिलते तो घट जाता है, समाप्त हो जाता है. ऐसे प्रेम को लाक्षावत कहते हैं. ओके, थैंक यू दीदी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्वर. स्वर, आप that little kid again, and you can ask. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई हमें दुख दे रहा है, तो फिर हम हमारा प्रारब्ध समझे, या फिर वो दुख देने वाला व्यक्ति नया काम कर रहा है, ये कैसे जाने? अगर कोई हमें दुख दे रहा है तो क्या है? अगर कोई हमें दुख दे रहा है, मतलब अगर कोई हमें दुख दे रहा है, तो हम हमारा प्रारब्ध भुगत रहे हैं, या फिर वो दुख देने वाला व्यक्ति नया काम कर रहा है?
दीदी वो बोल रहा है कि दुख प्रारब्ध की वजह से हम भोग रहे हैं कि वो कोई नया व्यक्ति हमें कुछ और बताने के लिए दे रहा है दुख। हाँ हाँ दुख देना ये तो व्यक्ति की अपनी प्रवृत्ति होती है, किसी किसी की आदत होती है दूसरों को दुख देने की, या कोई अपना स्वार्थ होता है, डिस्करेज करने के लिए दूसरे व्यक्ति को व्यक्ति दुख देता है, वो उनकी प्रवृत्ति है। हमें जो दुख मिलता है वो दो कारणों से मिलता है। एक तो ये कि प्रारब्ध होता है, और दूसरा ये है कि अगर तुम भगवान के रास्ते पर चल रही हो और तुम्हारा गुरु सही है तो वो जानबूझ के दुख देता है तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कि तुम में सहनशीलता कितनी है, क्योंकि हमको सहनशीलता तो बढ़ानी पड़ेगी ना भक्ति करने के लिए। महाप्रभु जी चैतन्य ने 3 बातें कही ना जो दीनता के अंतर्गत आती हैं। तृणादपि सुनीचेन तलोरपि सहिष्णुना। तलोरपि सहिष्णुना का मतलब है कि पेड़ से भी ज्यादा, जो वृक्ष होते हैं इनसे भी ज्यादा सहनशील बनो। कोई कुछ भी कहता है, महाराज जी ने बहुत बार समझाया है अपने प्रवचनों में कि कोई कुछ भी कहेगा तो हमारे दोष ही तो बताएगा ना, वो कि तुम ऐसी हो तुम वैसी हो, दोष बताएगा। तो ऐसा कौन सा दोष है जो हमारे अंदर है नहीं? सब दोष हमारे अंदर है। हम दुखी इसलिए होते हैं उन दोषों को सुन के कि हम मानते ही नहीं कि हमारे अंदर ये दोष हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। महाराज जी कहते हैं नहीं, दुखी मत हो। जब कोई दोष बताए तो मन से उसे धन्यवाद दो कि तुमने याद दिलाया कि हमारे अंदर ये दोष है, अब हम इसका सुधार करेंगे। वो गुस्सा कर रहा है, वो तुम्हारी बुराई तुम्हारे मुंह पे कर रहा है, तुम्हें दुख दे रहा है, और तुम उसके सामने विनम्र अगर हो या कुछ नहीं बोल रही हो, एक्सेप्ट कर रही हो, तो वो भी झुक जाएगा। एक आध बार करेगा फिर वो भी झुक जाएगा। और वो झुके ना झुके हमारा तो लाभ होगा ना। हमें कोई बार बार बताया कि तुम्हारे अंदर ये दोष हैं, तो फिर हम सोचेंगे भाई हम इसका सुधार कर लें तो हम अच्छे बन जाएंगे। अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि जब हम घर की साफ सफाई करते हैं तो कुछ मच्छर, स्पाइडर्स, कॉकरोच मर जाते हैं। जब हम घर की साफ सफाई करते हैं तो कुछ कॉकरोचेस, मच्छर, स्पाइडर आदि मर जाते हैं। कभी कभी जानबूझ के मारना पड़ता है क्योंकि वो हमें परेशान कर रहा है। घर की सफाई करते मच्छर मस्किटोज मर जाते हैं तो बहुत परेशान करते हैं, तो इज दैट अ सिन? कोई मर जाता है तो मस्किटोज, मच्छर, स्पाइडर्स ये सब मर जाते हैं सफाई करते करते। कभी कभी जानबूझ के मारना पड़ता है क्योंकि वो हमें परेशान करते हैं। कोई पाप तो नहीं, तुमने जो मंशा नहीं है अगर तुम्हारी, भगवान के यहाँ जो हमको रिजल्ट दिया जाता है वो हमारी अपनी, हमारी इच्छा क्या है, हमारी मंशा क्या है, तो उस पे दिया जाता है। तुम अगर झाड़ू लगा रही हो और कोई मच्छर कीड़े मर जाते हैं तो तुम्हारा इंटेंशन उनको मारने का नहीं था, वो मर गए। तुम्हारा तो इंटेंशन सफाई करने का था, लेकिन उसमें कीड़े आ गए, कुछ भी मर गए वो, तो उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इंटेंशन कभी कभी हम रात को सोते तो मच्छर आ जाते, उसको जानबूझ के मारना पड़ता है। कभी हम रात को सोते तो जानबूझ के मच्छर मारना पड़ता है। तो हटाने की चेष्टा करो, अगर वो मर जाता है तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ओके, थैंक यू राधे राधे। Oh my God, so sweet. Next question is from Pradeep Kumar Pradhan. Go ahead, Pradeep भैया, आप पूछ सकते हैं question. हेलो। हाँ हेलो, राधे राधे। राधे राधे दीदी। हाँ राधे राधे। हाँ दीदी, मेरा क्वेश्चन था कि जब हम रूप ध्यान करते हैं तो उस समय थोड़ा सा आता है रूप ध्यान, फिर उसके बाद ब्लर हो जाता है। फिर हम तो ध्यान तो महाराज जी या राधा रानी करते, लेकिन कुछ और आ जाता है। तो वो
हमारा जो ध्यान है वो राधा रानी का माना जाएगा या जो ब्लर होके दूसरा कुछ आता है उसका माना जाएगा? फल हमें किस चीज का मिलेगा? नहीं नहीं आपका काम रूप ध्यान करने की चेष्टा करना मात्र है। जी आप रूप ध्यान करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो ब्लर हो जाता है या डिसअपीयर हो जाता है, जी जी तो इसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपके संस्कार इतने अनंत जन्मों के संस्कार है ना। अनंत जन्मों से तो साधना की नहीं थी, अब साधना कर रहे हैं, तो तमाम कुसंस्कार के कारण ऐसा सबके साथ होता है। हमारा कर्तव्य क्या है कि जब हमारा रूप ध्यान डिम होने लग जाए या ना होने, कहीं और मन हमारा चला जाए, हम सावधान रहें और फिर मन को खींच के लाएं भगवान की ओर, वो फिर चला जाएगा। अभ्यास तो उसको संसार में रहने का है ना, तो वो फिर संसार में चला जाएगा, फिर उसको खींच के लाई, फिर चला जाएगा। ऐसे ही अभ्यास करते करते मन लगने लग जाए, इसी का नाम तो साधना है ना। मैंने पिछली बार भी किसी ने ये क्वेश्चन किया था और मैंने बताया था कि साधना माने प्रैक्टिस है। साधना माने मन लग जाना नहीं है, मन लगाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। तो ये तो हो गई, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, भागेगा संसार में बार बार, और बार बार हम उसको वहां से हटा के फिर लगाएं ईश्वर की ओर, इसी का नाम साधना है। यही तो प्रैक्टिस करनी है हमको। जी जितनी आप मेहनत करेंगे, आपका जितना मन में ये विश्वास और इंटेंशन है कि हमको करना है रूप ध्यान, क्यों जा रहा है हमारा मन, तो बार बार जब आप ऐसा प्रयास करेंगे तो महाराज जी यानी आपके गुरु आपके ऊपर कृपा करेंगे और फिर आपका मन लगने लग जाएगा। तो हमें तो प्रयास करना है, बाकी सब महाराज जी अपने आप देखेंगे। ठीक है, राधे राधे। और दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है अजीत भैया का। उनका क्वेश्चन ये है कि जब कीर्तन में जाते हैं और बाकी लड़कियों से या सब सत्संगियों से सुनते हैं कि मेरे कृष्ण मेरे श्याम, तो मन ही मन में जेलस होने लग जाता है कि ये तो मेरे बिलवर्ड हैं और ये सब लोग उनको प्यार करते हैं, तो मैं इस फीलिंग को कैसे ओवरकम कर सकता हूँ? देखिए, भगवान सबके अपने हैं, पर्सनल हैं। जिस रूप का आप ध्यान करते हैं वो आपके श्री कृष्ण हैं, जिस रूप का मैं ध्यान करती हूँ वो मेरे श्री कृष्ण हैं। हम अपने श्री कृष्ण के लिए कहते हैं मेरे कृष्ण, आप अपने श्री कृष्ण के लिए कहिए मेरे कृष्ण। अरे अगर एक स्त्री कहती है मेरे पति, ये केवल मेरे पति, तो आपको क्यों जेलस हो? आपकी पत्नी आपको बोलेगी कि ये केवल मेरे पति हैं, वो दूसरा के लिए उसकी पत्नी बोलेगी मेरे पति हैं। तो किसी पत्नी को आपस में जेलसी तो नहीं होती कि ये क्यों कहती है कि ये मेरे पति हैं? अरे वो आपके पति को आप भी कहिए। तो हम जिसका रूप ध्यान करते हैं वो केवल हमारे हैं और किसी के नहीं, और तो कोई जान भी नहीं सकता कि हमारे कौन है, वो कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, कैसे लगते हैं, और कोई कैसे जानेगा? आप अपने प्रियतम के लिए बोलिए मेरी राधे मेरे श्याम, वो अपने प्रियतम के लिए बोल रहे हैं, दूसरे लोग आपको क्यों जेलस? वो अपने उसके लिए बोल रहे हैं, आप अपने के लिए बोलिए। ठीक है, थैंक यू दीदी। Our next question is from Piyush Rathod. Piyush, go ahead, ask your question. राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि महाराज जी ने जैसे कहा है कि भगवान राधा कृष्ण सच्चिदानंद रूप, मतलब हम उनके किसी भी अंग का रूप ध्यान करें, हाथ पैर मुख, तो हमें उसी का फल मिलेगा। तो क्या हम महाराज जी के भी किसी भी ऐसे हाथ या मुख का एकदम बन नहीं पाता है, तो फिर हम ऐसे हाथ का करें तो भी क्या वही फल मिलेगा? आपको तो रूप ध्यान करना है। प्रारंभ में ऐसा ही होता है कि कभी कभी तो होता ही नहीं, कभी किसी एक अंग का रूप ध्यान होता है, कभी सर्वांग का रूप ध्यान होता है। तो अगर एक अंग का भी रूप ध्यान हो रहा है तो समझ लीजिए कि आगे चल के प्रैक्टिस बढ़ाने से सर्वांग का भी रूप ध्यान होगा,
फल तो रूप ध्यान का मिलता है, ये अंग वंग से कोई मतलब नहीं है। भगवान के हर अंग में अनंत रस है, एक सा रस है, अनंत मात्रा का रस है। तो आप कम से कम भगवान का ध्यान तो कर रहे हैं। भगवान की कोई भी चीज हो, उसका फल भगवान ही होता है, उसका रस, उसका आनंद दिव्य ही होता है परिणामतः। इसलिए आपको अगर मान लो अच्छा ही आपको सिर्फ यही लगता है कि आप श्री कृष्ण की आंखों का ध्यान करें या उनके चरणों का ध्यान करें, उनके मुखारविंद का ध्यान करें, तो आप करो, फल सबका एक है। और अगर हो नहीं रहा है इस कारण एक अंग का ध्यान हो रहा है, तो आगे चल के होने लग जाएगा। आप प्रयास करते जाइए, अभ्यास इसी को कहते हैं, साधना इसी को कहते हैं। और दीदी जी मेरा एक और क्वेश्चन है कि महाराज जी को ही राधा कृष्ण मानकर उनका रूप ध्यान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और जन, इन पांचों में कोई भेद नहीं है। आप इनमें से किसी का भी ध्यान करिए तो वो भगवान का ही ध्यान है। और दीदी जी मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मैं एकादशी का व्रत रखता हूँ, तो मैं उस दिन महाराज जी की मानसी सेवा कर रहा था, तो जैसे मैं उनको भोग परोस रहा था तो उस भोग में मैंने चावल परोस दिए, तो क्या मुझे उसका वो पाप पड़ेगा? नहीं एक नहीं, प्रकार पाप से पाप नहीं पड़ता है, ये तो भक्ति है ना। अगर आप महाराज जी का ध्यान करके उनको समर्पित करके कर रहे हैं, ये भक्ति है। और भक्ति का कोई नियम नहीं होता, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक ही नियम है भक्ति का, एक ही निषेध है भक्ति का। स्मरण करो, भगवत स्मरण होना चाहिए, यही, केवल यही एक नियम है भक्ति का। उनका विस्मरण ना होने पाए, यही निषेध है। बाकी कुछ नहीं, आप जो मर्जी आए हमको प्रेम से खिलाओ, वो प्रेम खाते हैं, भोजन नहीं। उसमें जो लपेटा हुआ प्रेम है, बस उसका ही भोग लगाते हैं। आप प्रेम से उनको चावल खिलाइए, दाल खिलाइए, सब्जी खिलाइए, जो मर्जी आए आप खिलाइए। दिन में क्या होता है, 7 दिन भगवान के। आप व्रत रखते हैं एकादशी का, ठीक है, चलो अपना कंट्रोल कर रहे हैं अपने इंद्रियों पे, मन पे, लेकिन उससे और भक्ति का कोई कनेक्शन नहीं है। आप जो ध्यान कर रहे हैं महाराज जी का, वही मेन है, चाहे वो एकादशी हो, द्वादशी हो, कोई भी हो। थैंक यू दीदी, राधे राधे। राधे राधे। दीदी ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है कि महाराज जी की पहली प्रचारिका कौन थी? प्रचारिका? हाँ जी। ब्रिज देवी जी। All right, thank you, Didi. And next question is Subhasis. Subhasis, go ahead, ask your question. हाँ, राधे राधे दीदी, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है भैया। ओके दीदी, मैं राधा गोविंद के पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 2 प्रकार के गोपियां होते हैं, कांत भाव और सखी भाव। और उसमें महाराज जी लिखे हैं कि क्या होती है? गोपियां होते हैं, कांत भाव की एक और सखी भाव की। हेलो, हाँ जी भैया, क्या होती है? सखियां होती हैं, कांत हाँ। गोपियां 2 प्रकार की होती हैं। कांत भाव एंड सखी भाव। तो उसमें महाराज जी लिखे हैं कि कांता भाव जो गोपियां होते हैं वो सकाम होते हैं, और जो सखी भाव वाले गोपियां होते हैं वो निष्काम होते हैं। तो हमको कौन से में, क्योंकि महाराज जी बोलते हैं हमको निष्काम भाव रखना है, तो हमको कांता भाव फॉलो करना है कि सखी भाव फॉलो करना है? अगर आप सकाम भक्त बनना चाहते हैं, महाराज नहीं चाहते हैं, तो आप कांता भाव को मानिए। और अगर आपको सर्वोच्च कक्षा का गोपियों वाला प्रेम चाहिए तो सखी भाव मानिए, निष्काम प्रेम करिए। जो आपकी चॉइस है। महाराज जी तो निष्काम प्रेम की ही बात करते हैं। तो कांता भाव वाले जो होते हैं महाराज जी, और एक प्रवचन में बोलते हैं कि कांता भाव जो होते हैं वो सखी भाव के शरण में जाते हैं, तभी उनको महाराज मिलता है। नहीं, कांता भाव वालों को महाराज मिल ही नहीं सकता। जहाँ थोड़ी सी भी सकामता है, थोड़ी सी भी, इसमें अच्छा। महाराज का
पाने की कोई गुंजाइश नहीं। और कांता भाव में तो पति मानकर, कांता भाव का मतलब होता है कि श्री कृष्ण मेरे पति हैं। और जहां पत्नी भाव होगा तो पत्नी भावाभिमानत्वात्, पत्नी का भाव आ जाने के अभिमान आ जाता है कि मैं पत्नी हूं तो ये मेरा अधिकार है मांगना। तो उस अधिकार को समझते हुए कभी कभी सकामता आ जाती है, इसको कांता भाव कहते हैं। वो महाराज पाने वालों के लिए नहीं है। महाराज तो केवल परम निष्काम प्रेम, इसमें किसी भी तरह की कोई भी कामना नहीं है, केवल एक कामना है, हमें कैसे श्री कृष्ण को प्रसन्न रखना है, बस, और कुछ नहीं। Okay, we will now move on to the next. और एक question, हाँ जी, पूछिए भैया जल्दी। और एक क्वेश्चन है जो रिलेटेड वही है। तो वो जो सखी भाव होते हैं, वो उसमें जो महाराज जी एक बार बोले थे कि 3 प्रकार के सखी भाव होते हैं, सखियां होते हैं। तो उसमें उज्जवल नीलमणि में लिखा गया है कि मतलब कोई कृष्ण स्नेहाधिका होते हैं, कोई सम स्नेहाधिका होते हैं और कोई राधा स्नेहाधिका होते हैं। तो जिसको मतलब ऐसे बोला जाता है कि जो मंजरिया होते हैं वो उनको रास महाराज उनको मतलब इतना पसंद नहीं है, जो बस राधा दासी भाव में रहना चाहते हैं वो लोग। तो जिसको राधा दासी भाव में चाहिए, क्या वो मतलब महाराज जी का जो सिद्धांत है वो फॉलो करके मिल सकता है क्या वो लक्ष्य? राधा भाव को तो मिलेगा ही। जो जितनी भी सखियां हैं जिनको महाराष्ट्र मिला है, वो उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनमें राधा के प्रति अधिक प्रेम है और कुछ ऐसी हैं जिनका श्री कृष्ण के प्रति अधिक प्रेम है। जो राधा से अधिक प्रेम करती है वो भी श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं क्योंकि वो श्री राधा से प्रेम करते हैं, इसलिए। इसी प्रकार जिनका श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम है वो भी श्री राधा से भी अनंत प्रेम करते हैं क्योंकि श्री कृष्ण का उनसे अधिक प्रेम है। तादात्म्य भाव से दोनों वो सबको सब प्रेम करते हैं, लेकिन रुझान किसी किसी का श्री राधा के प्रति अधिक है और किसी किसी का श्री कृष्ण के प्रति अधिक है। तो हमको दीदी जैसे मेरे को राधा ज्यादा पसंद आते हैं, राधा का पक्ष लेने में ज्यादा पसंद आता है। तो आपकी अपनी चॉइस है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका स्वभावतः राधा के प्रति अधिक प्रेममय है तो आप राधा से अधिक प्रेम करिए। श्री कृष्ण आपके प्रियतम है, श्री कृष्ण श्री राधा रानी के भी प्रियतम है, इसलिए जब तक आप दोनों को प्रसन्न नहीं करेंगे तो दोनों प्रसन्न कैसे होंगे। इसलिए प्रेम तो दोनों से करना है क्योंकि हमारी श्री राधा रानी के स्वामी श्री कृष्ण है और जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं उनको भी श्री राधा से प्रेम करना है क्योंकि हमारे श्री कृष्ण की स्वामी श्री राधा है जी। कि इसी के रिलेटेड महाराज जी लिखे राधा गोविंद गीत में कि राधा पक्ष वाले जो गोपियां होते हैं, इसी के रिलेटेड जो चीज है महाराज जी लिखे राधा गोविंद गीत में कि राधा पक्ष वाले जो गोपियां होते हैं वो श्रेष्ठ कहलाते हैं, मतलब ऐसे लिखे हैं। तो हमको किस पक्ष में रहना है? अगर मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा कहीं भी कि जो केवल राधा माधुरी में या वो तो श्रेष्ठ जो उनकी सखियां हैं, अष्ट महासखियां हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। वो श्री राधा रानी की अष्ट महासखियां हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। हाँ, वो और तो है, लीला में एक रात देखिए, लीला की बात आप छोड़िए, लीला में तो श्री कृष्ण अलग हैं, श्री राधा अलग हैं। लीला में जो श्री राधा के साथ निरंतर हैं, नेचुरली फिर उनको अधिक सौभाग्य, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी श्री राधा की सखियों के चरणों में गिर गिर कर लोट लोट कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें गौरमुख का दर्शन करा दो। तो लीला के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस दृष्टिकोण से वो सखियां जो श्री राधा से डायरेक्ट संबद्ध हैं वो श्रेष्ठ हैं। बाकी ऐसे लिखा है। हाँ, बस बाकी ऐसे कोई छोटे बड़े की कोई बात है नहीं वहाँ। तो हमको मतलब जिसका जैसे संस्कार होते हैं तो वैसे चलना चाहिए, राइट? ऐसे कोई मतलब रुकावट नहीं है कि हमको प्रियतम भाव से मानना चाहिए। समझिए ना कि जब आपको पता है कि राधा भी वही है, श्री कृष्ण भी वही है, वो तो है, सिद्धांत भेद है ही नहीं, तो आपका रुझान जिधर है, स्वाभाविक आपका प्रेम जिधर है राधा या कृष्ण में, आप उनसे प्रेम करिए।
जी अपने को फोर्स नहीं करना है कि हमें इनसे प्रेम करना है, इनसे नहीं करना है, इनसे करना है, वो है ही एक, जिसे भी करिए हाँ दोनों। एक ही है। हाँ, ठीक है दीदी, राधे राधे। Okay, thank you भैया. The next question, before I go to the next question, मुझे आप सबको बताना है कि अगर आपको दीदी की बुक लेनी है तो हम चैट में YouTube लिंक डाल रहे हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है. If you are from Nepal, Australia, or you from India, Canada, America, तो उस सारी इंफॉर्मेशन आपको चैट में लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप प्लीज एक बार सब लोग देख सकते हैं YouTube लिंक में. Our next question, we have so many hands raised up, so we'll be fast. The next is from Anubhuti Krishna. Go ahead, ask. राधे राधे दीदी. राधे राधे. पीला पीताम्बरी क्यों पहनते थे, मतलब पीला वस्त्र क्यों धारण करते थे? तो अब उनसे ही पूछिए उनको क्यों पसंद था पीला, अपनी अपनी पसंद है. वैसे मैं पीला रंग जो है श्री कृष्ण इसलिए पहनते थे, ये रसिकों का दृष्टिकोण है कि श्री राधा रानी के जो शरीर की आभा है वो स्वर्ण के समान पीले, जैसे स्वर्ण में पीलापन होता है ना, तो उनकी आभा जो है, शरीर की आभा, वो स्वर्ण के समान है. इसीलिए श्री कृष्ण को पीतांबर पहनना, जो उनके पूरे शरीर की का जो रंग है उसको अपने शरीर से लपेटे रहना, उसको धारण करना उन्हें अच्छा लगता है. इसी प्रकार श्री कृष्ण का रंग नीला है, इसलिए श्री राधा रानी को नीले वस्त्र पहनना अच्छा लगता है, वो नीलांबर पहनती है. जी अच्छा. और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि ये नौधा भक्ति की भक्ति कैसे करें, जो महाराज जी ने नवधा, नौ भक्ति. देखो नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है. लेकिन ये जब आप केवल एक भक्ति समझो पहले तो कि स्मरणम, हमें तो भगवान का प्रमुख है स्मरण, और फिर जब आप स्मरण उनका करेंगे तो आप उनकी लीलाओं का ध्यान भी करेंगे, उनके गुणों का ध्यान भी करेंगे. कभी आप रूप ध्यान कर रहे हैं कि आप उनका चरणों का सेवन कर रहे हैं, कभी आप उनका रूप ध्यान करेंगे कि आप उनको भोग लगा रहे हैं, कभी आप रूप ध्यान करेंगे कि आप अपने आप को पूर्णतया उनके सामने समर्पित कर रहे हैं. तो अनेक प्रकार के भाव आपके बनेंगे रूप ध्यान में. तो नवधा भक्ति में तो ये सब जब आप मन से स्मरण करके रूप ध्यान करके भगवान का स्मरण करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. प्रमुख बात तो 3 है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम. नवधा भक्ति में पहले ही जो किया श्रवणम कीर्तनम स्मरणम 3 बातें लिखी हैं, वो 3 प्रमुख हैं. हमें भगवान का पहले उनकी महिमा, उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण धाम आज के विषय में बार बार सुनो. जैसे आप किसी फिल्म एक्टर या किसी भी अन्य व्यक्ति की बहुत तारीफ सुनते हैं बार बार सबसे, तो आपका मन होता है भाई कौन है वो, देखें इसको, उसको देखने की इच्छा होती है. वो आपके शहर में आए तो आप चाहते हैं देखना. ये फिल्म एक्टर्स वगैरह आते हैं तो कितने महंगे महंगे टिकट होते हैं, लोग सिर्फ देखने जाते हैं, उनमें कोई विशेषता नहीं, जैसे सब है वैसे वो लोग भी हैं. लेकिन उनका नाम इतना हो जाता है उनका बार बार सुनने से कि उनको देखने की इच्छा होने लगती है. ऐसे ही जब भगवान के दिव्य गुणों को बार बार हम सुनते हैं, उनकी दिव्य लीलाओं के विषय में बार बार सुनते हैं, तो उनको देखने की इच्छा होने लग जाती है. तो पहले तो श्रवण, हम बार बार उनके विषय में सुने, उनके महात्म्य को भी सुने, उनकी मधुर मधुर लीलाओं को भी सुने, उनके सुंदर सुंदर दिव्य गुणों को भी सुने. तो श्रवणम, और फिर कीर्तनम, फिर हम उसी का गुणगान करें बार बार और चिंतन बढ़ाने के लिए. जितना हम श्रवण और कीर्तन करेंगे उतना हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा उनसे. लेकिन ये श्रवण और कीर्तन तभी श्रवण है और तभी कीर्तन है जब हम मन से उनका स्मरण करते हुए, रूप ध्यान करते हुए करें. तो श्रवण कीर्तन 2 प्रमुख चीजें हैं, और उसमें उसके अंदर जो उसका प्राण स्वरूप जो उसका है वो है रूप ध्यान. रूप ध्यान पूर्वक हम श्रवण और कीर्तन करें, बाकी सब तो अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाएगा, आ जाएगा अपने आप धीरे धीरे करके. 9 प्रकार की भक्ति एक साथ करना पॉसिबल नहीं. थैंक यू. और
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दीदी, कोई पूछ रहे हैं ये कि अगर भगवान के वहां पे तो सिर्फ मन का ही मिलता है फल, तो अगर किसी ने कुछ बुरा सोचा और पर फिजिकली किया नहीं, और दूसरे पर्सन ने बुरा सोचा भी और फिजिकली कर भी दिया, तो क्या भगवान की नजरों में सेम रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल। भगवान तो शरीर से तुमने क्या किया क्या नहीं किया, वो तो नेचुरली, अगर आपने जैसे कोई मर्डर करने की बात सोची है, आपने सोचा है तो सोचने का पाप आपको मिलेगा, और सोच के आपने कर भी दिया, यानी दूसरे को भी कभी नुकसान किया, तो डबल अपराध तो हो ही गया ना। वो पाप तो दोनों है, लेकिन कर भी दिया तो डबल पाप हो गया कि आपने दूसरे को दिल को दुखा भी दिया, दूसरे का नुकसान भी कर दिया। अपना तो किया ही, दूसरे का भी कर दिया। Okay, thank you, Didi. And next question is from Janvi. Janvi, go ahead, ask. राधे राधे। राधे राधे। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं Janvi, just so it's easier to interact. नो सॉरी, Okay, go ahead, ask. Go ahead. मुझे ये पूछना था कि जब मेरी मैरिड नहीं हुई थी तब से मैं स्टडी कर रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ, बट अब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं सेवा वगैरह करूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप फिजिकली कुछ सेवा नहीं कर पा रही हैं, लेकिन मन में इच्छा बढ़ाते जाइए। जो सेवा की इच्छा है, मानसिक सेवा करिए। रोज उनको जो भी आप खाते हैं, आपको खाने को तो मिलता है ना, जो भी आप खाते हैं उसका भोग लगाइए। अपने कमरे की सफाई करिए, ये सोच के कि ये गुरु का कमरा है, या ये सोच के कि ये हमारे प्राणवल्लभ श्याम सुंदर का कमरा है, उसकी सफाई करिए। आपने अपने यहाँ पूजा की अलमारी बनाई हुई, आप उसकी सफाई कीजिए। आप मन से उनकी हर प्रकार की सेवा करिए, उसको कौन रोक देगा आपको करने से? आप मन में क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये कौन जानेगा, और कैसे रोकेगा कोई आप? ये सेवा भाव मानसिक रूप से सबसे बड़ी सेवा यूं भी मानसिक सेवा है। उस सेवा की भावना को बढ़ाते जाइए, तो गुरु की कृपा से आपको आगे सेवा का अवसर अवश्य मिलेगा। ओके, थैंक यू। Okay, thank you. And the next question is Rishabh Kapoor. Rishabh, आप भी अपना क्वेश्चन अनम्यूट कर सकते हैं। राधे राधे दीदी। राधे राधे। आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि उसे चलने की कोशिश करी, चल भी लिया थोड़ा, लेकिन फिर नामापराध होने लगा। तो अब आप कहते हैं और मैंने सुना भी है कि आंसू बहाइए और तभी आपको मतलब आप आगे चल पाएंगे, और थोड़ी सी तामसिक वृत्ति भी हो तो उससे कैसे बचा जाए? तो आंसू आंसू बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं है ऐसे। नहीं, तो कोई बड़े भारी आश्चर्य की बात नहीं है, आंसू नहीं आते। आपने केवल साधना बढ़ाई, साधना और रूप ध्यान करने की चेष्टा करते हुए साधना बढ़ाते जाइए, बाकी सब प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ओके। सब मर्जों की केवल एक दवा है, साधना। साधना जितनी अधिक करेंगे, आपकी सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी। तामसिक वृत्ति होना देखो एक अकेले आपकी नहीं है, जो भी मायाबद्ध जीव हैं उनमें सात्विक राजस तामस तीनों वृत्तियां होती हैं। आप साधना करने बैठते हैं तो उस समय पता चल जाता है आपको कि मेरी तामसी वृत्ति है, बाकी टाइम में पता नहीं चल पाता। तामसी और राजसी वृत्तियां तो आती जाती रहती हैं, उसकी चिंता मत करो, चिंता केवल श्याम सुंदर की करो। जहां तक हो सके उनका रूप ध्यान करो, हर समय जहां उठ रहे, जा रहे हो, आ रहे हो, कहीं कुछ भी काम कर रहे हो, उनकी प्रेजेंस को फील करने की चेष्टा करो। ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमको ऐसी कि आते जाते हर समय हम ये फील करें कि हमारे साथ हैं हमारे श्री कृष्ण। इसी से तामसी वृत्ति भी धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी, और जो गंदे विचार आते हैं वो सब भी खत्म हो जाएंगे, अपराध वगैरह करना बंद हो जाएगा, और इसी से आंसू भी आने लग जाएंगे। गुरु कृपा हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू दीदी।
Thank you, Rishabh. The second is Vishakha Agarwal. The next one, sorry, Vishakha Agarwal. Go ahead, ask your question. मतलब राधे राधे विशाखा। विशाखा दीदी अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर रूप ध्यान के समय हमें महाराज जी का रूप ध्यान के समय हमें दीदियों का रूप ध्यान हो गया होता है, तो उसमें वो सही चीज है या कुछ गलत है? मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से, क्या बोले हैं? दीदी वो बोल रही है कि महाराज जी की जगह अगर दीदियों का कभी रूप ध्यान हो जाता है तो इज दैट ओके और नॉट? नहीं, हो जाता है तो उसमें कोई ऐसा कोई पाप नहीं हो गया कि उनका रूप ध्यान हो गया, लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम श्री महाराज जी का ही, क्योंकि गुरु तो हमारे महाराज जी ही है ना, तो जो भी मिलेगा हमको वो तो उनकी कृपा से ही मिलेगा, वही देंगे हमको, और हमें अनन्य भी बनना है। तो केवल हमें अपने गुरु के प्रति अनन्य भाव से उनका ही स्मरण करना है, उनके ही सिद्धांतों का तो हम पालन कर रहे हैं ना, चलना तो हमको उनके ही सिद्धांतों का है। दीदी लोग भी आपको केवल महाराज जी के ही सिद्धांत बताती है ना, और वो भी इस बात पे इंसिस्ट भी करती है कि महाराज जी का ही रूप ध्यान करो। लेकिन कभी अगर हो जाता है तो इतना भी कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि वो भी तो भक्त हैं, उच्च कोटि की भक्त हैं। अगर और कुछ मत मानो तो इतना तो मानना ही पड़ेगा ना, तो वो उच्च कोटि की भक्त हैं, फिर महाराज जी का वो अंश स्वरूप है, तो उनका अगर रूप ध्यान हो गया तो कोई पाप नहीं है। लेकिन हमें प्रयास यही करना चाहिए कि हम महाराज जी का ही रूप ध्यान करें, जिनके अनुगत होके हमें भगवत प्राप्ति करनी है। कुछ और? थैंक यू विशाखा। एक क्वेश्चन और है। क्या है? एक क्वेश्चन कि हम जब महाराज जी और अम्मा जी का भोग लगाते हैं तो उसमें हम प्याज लहसुन का कोई इंग्रेडिएंट हो गया, कोई सब्जी हो गई या कुछ हो गया, उसमें प्याज लहसुन है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्याज लहसुन तो सब्जी है ना, और आयुर्वेद में तो इसको बहुत अच्छी सब्जी बताई गई है, रोगनाश। तो अगर प्याज लहसुन अगर पड़ा हुआ है तो कोई इतना कोई हर्ज नहीं है। कर्मकांडी लोग इसके विरोध में हैं, भक्ति में इसका कोई विरोध नहीं। थैंक यू दीदी। राधे राधे। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने लिखा है कि महाराज जी ने तो मेडिटेट करने को बोला है, राधा कृष्ण की ही फॉर्म को मेडिटेट करने के लिए बोला है, बट क्या वो कभी कभी पीकॉक या काउस का ध्यान कर सकते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण ने पीकॉक का भी रूप धारण किया था मान लीला में राधा रानी को मनाने के लिए, और ऐसा क्या हम कर सकते हैं एनिमल्स का वो वाला रूप? अगर ये आप ध्यान कर रहे हैं कि श्री कृष्ण पीकॉक बनकर आ गए हैं, या श्री कृष्ण गाय के साथ खड़े हुए हैं, या वो गाय को प्यार कर रहे हैं, मतलब श्री कृष्ण अगर उसमें जुड़े हुए हैं किसी ना किसी प्रकार से, श्री कृष्ण की स्मृति जुड़ी हुई है, तब तो ठीक है। लेकिन श्री कृष्ण को उतनी देर भूल के केवल पीकॉक का ध्यान करना, केवल गाय का ध्यान करना, तो गाय का फल मिलेगा, पीकॉक का फल मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण को साथ जोड़ के आप गाय का, पीकॉक का या किसी भी चीज का ध्यान कर रहे हैं, तो उससे तो श्री कृष्ण का ही फल मिलेगा। और दीदी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या व्रत और तप से श्री कृष्ण हमें वो इंसान दे देते हैं जिनसे हमें प्यार होता है? श्री कृष्ण की आराधना से क्या वो हमें बचाते हैं कि रिश्ते में आए धोखों से? क्या? तो अगर व्रत रखे किसी पर्सन के लिए तो क्या श्री कृष्ण हमें वो पर्सन दे देंगे, ये पूछ रहे हैं। नहीं, वो क्यों देंगे आपको? संसार में अगर आप किसी के लिए कुछ भी करें तो वो तो हानिकारक है ना। तो भगवान हमारे हितैषी हैं, हमारे दुश्मन थोड़ी हैं। हम कुछ भी गलत काम करेंगे तो उसमें भगवान कोई हेल्प नहीं करेंगे। Okay. All right, Didi, the next question is from Piyush, I think he has already asked. So Shelly from Mumbai, go ahead, ask. राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी मैंने आपको दिल्ली में गोलोक धाम में देखा था एक बार,
और दीदी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा चांस आ गया आपसे प्रश्न पूछने का। दीदी मेरा प्रश्न ये है कि मैं कोशिश करती हूँ रूप ध्यान करने की, लेकिन हो नहीं पाता। ना तो मुझे भाव आ पाते हैं भोग लगाती बार, ना मुझे आंसू आते हैं। लेकिन मेरे पर इतनी बड़ी बड़ी कृपाएं हो गई हैं कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, कितनी बड़ी कृपाएं हो रखी हैं। महाराज जी ने इतना कुछ दे रखा है, लेकिन मैं समझती हूँ, लेकिन कोई भाव नहीं आते, कोई आंसू नहीं आते मुझे। इसका उत्तर मैं दे चुकी हूँ। इस केवल एक ही उपाय है, साधना। आप अपनी साधना को बढ़ाते जाइए। देखिए, जहां तक आंसू या भाव का सवाल है, ये तो श्री महाराज जी की कृपा से ही होता है। और दूसरी बात, ये हर व्यक्ति का अंतःकरण अलग अलग प्रकार का होता है। कोई लोग तो जिनमें कोई विशेष भक्ति नहीं भी होती, तो थोड़ा सा ही कुछ कीर्तन करते हैं या थोड़ा सा कोई भगवान की लीला वाला को सुन लेते हैं, तो उनके आंसू आ जाते हैं, मन पिघल जाता है, उनका जल्दी पिघल जाता है। और सात्विक भाव भी एक आध अश्रुपुलकादयु के जो सात्विक भाव हैं, प्रेमणस्तु प्रथमावस्था अश्रुपुलकादय, ये आंसू आ जाना, शरीर का पुलकित हो जाना, ऐसे तो ये दिखाई देने लगता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि जिस व्यक्ति में भाव का ये छोटे मोटे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत उसकी ऊंची स्थिति है, वो भाव भक्ति पर पहुंच गया है। कर्मियों में, ज्ञानियों में भी ये भाव दिखाई दे जाते हैं, एक साधारण व्यक्ति में भी ये भाव दिखाई देते हैं, लेकिन ये रत्याभास कहलाता है, रति नहीं है। किसी एटमॉस्फेयर विशेष में उनका मन ऐसा है कि बड़ी जल्दी फिसल जाता है, तो वो संसार में भी बड़ी जल्दी उनके आंसू आ जाते हैं, संसार में भी उनका मन बड़ी जल्दी पिघल जाता है, और भगवान के यहाँ भी। तो वो क्षणिक होता है, उसको रत्याभास कहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रमुख बात तो ये है कि जब आप साधना करते हैं तो आपका रूप ध्यान कैसा होता है, महाराज जी से प्यार कितना है, धुंधला सा बढ़ रही है, वो सब बढ़ाना है हमको साधना के द्वारा। उस पर ध्यान निराशा आ जाती है कि कितने पाप किए हैं, कि सब बुद्धि समझ रही है और कितना मानव जन्म इम्पोर्टेंट है, फिर भी नहीं हो पा रहा। ये सोचना तो अच्छा है कि हमारी बुद्धि कितनी गंदी है, हमने कितने पाप किए हैं कि हमको आंसू नहीं आ रहे हैं, हमारे में कोई भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, वो सोचना अच्छी बात है। लेकिन निराशा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो नहीं हो रहा है वो हमने, देखिए, जिनको जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पूर्व जन्म में काफी साधना कर चुके हैं, इसलिए वो जैसे ही सत्संग में आते हैं, थोड़े दिन में उनको आंसू भी आने लगता है, भाव भी आने लगता है। वो उनके पूर्व जन्म की कमाई है। और हमने अगर कमाई नहीं की है तो हमें आंसू जल्दी नहीं आएंगे, हमें भाव नहीं आएंगे जल्दी। लेकिन अगर दूसरे को आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, भाव आ रहा है, तो एक दिन हमें भी आएगा। उनके भी गुरु वही हैं, हमारे भी गुरु वही हैं। और गुरु तो निष्पक्ष होता है और दया सिंधु होता है, तो वो हमारे ऊपर भला कृपा क्यों नहीं करेंगे। हमें अपनी साधना बढ़ानी पड़ेगी, बस, और कुछ नहीं। वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो तो वो हमें माला माल कर दें प्रेम दान देके, वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमी हमारी तरफ से है, तो हमें अपनी साधना को बढ़ाना होगा। उसने पहले बढ़ा रखी होगी तो उसको जल्दी हो गया, हमको अब बढ़ानी है, अब हम आप बढ़ा लेते हैं। अरे भाई, वो उसने 10 साल पहले पढ़ना शुरू किया था, वो MA में पहुंच गया, अभी हम 7th क्लास में, हमने तो अभी शुरुआत की है, कुछ सालों से पढ़ाई की। तो जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी भक्ति के ये सब लक्षण भी दिखाई देंगे। तो क्लास को बढ़ाने के लिए संसार में तो 1 साल लग जाता है एक क्लास में से दूसरे क्लास में आने में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, आप 10 दिन में ही एकदम आगे बढ़ सकते हैं। डिपेंड करता है हम कितनी सिंसियरली और कितने अच्छी तरह से, कितनी देर तक रूप ध्यान करते हैं, और कितने विश्वास के साथ कि हमारे ऊपर गुरु कृपा अवश्य हो। हमारे गुरु कृपालु हैं, उनकी कृपा तो होगी ही हमारे ऊपर। हमारी तरफ से कमी है, हमें से करना है, उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, और कोई, हमें ही करना। राधे राधे दीदी।
Okay. Our next question is from Jayanti. Jayanti Mali, go ahead, ask your question. अगर बाकी किसी के पास भी question है, feel free to raise your hands, turn the video on, unmute and ask. Jayanti, go ahead. अनम्यूट कर लीजिए जयंती दीदी। We can go on to the next one. Tripti, आप पूछ सकते हैं। राधे। Okay, there. हाँ जी दीदी पूछिए। राधे राधे दीदी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे बोलिए, आप क्वेश्चन बोलिए। मेरा क्वेश्चन है, ना तो मैं महाराज जी से मिली कभी है, और ना कभी हमने, बस मोबाइल पे ही थोड़ा बहुत सत्संग सुना है महाराज जी का। तो महाराज जी की बताई हुई साधना भी करते हैं, पर वो बोलते हैं श्वास श्वास राधे नाम जप करो, और साथ साथ में ध्यान, तो ये दो एक साथ नहीं हो पाते हैं दीदी। नहीं, आप कोशिश करिए। आपने श्री अच्छा। महाराज जी का लेक्चर सुना है और आपको ये बात समझ में आई है कि हमें राधे राधे बोलना चाहिए। उसको मेहनत तो है नहीं, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमको। अभी नहीं, प्रैक्टिस हम करते हैं दीदी, प्रैक्टिस करते हैं ना। जब राधे राधे हो जाएगा पूरे दिन भी होएगा, पर ध्यान साथ में करते हैं तो राधे राधे छूट जाता है, वो भूल जाते हैं हम। जो ध्यान करते हैं ना कि वो हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में है। और भी अच्छा है, अगर आप ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते करते राधे राधे बोलना छूट जाता है, तो ध्यान तो और बड़ी चीज है ना, मेन तो ध्यान ही है। तो वो हमें समझ में नहीं आती है कि सही है क्या, सही है क्या। राधे राधे बोलने प्रैक्टिस करने का यही पर्पस है कि उनको राधे को अपने माइंड में, भगवान को सदा अपने मन में रखें। तो अगर आपको ध्यान हो रहा है उनका, तो राधे नाम छूट ही जाएगा। दो में से एक तो हो जाता है, पूरे दिन भी चल जाएगा। राधे जब कर ले सांस से या फिर ध्यान कर ले तो पूरा दिन होएगा, पर दोनों तो साथ ध्यान में एक ज्यादा साथ। रहेगा। ध्यान हो रहा है तो राधे नाम छूट भी जाता है, तो कोई चिंता नहीं। अच्छा, वही मेरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, जब हम रूप ध्यान करते हैं ना दीदी जी, क्या करते तो हैं? रूप ध्यान में बैठते हैं ना जब हम, तो हमारे पास युगल छवि मूर्ति है, तो उसका ध्यान कभी कभी आ जाता है। फोटो भी है, मूर्ति भी है, तो हम फोटो का करते हैं तो मूर्ति आ जाती है सामने, तो उसको कैसे करें? देखो, फोटो या, इसीलिए महाराज जी ने कहा है कि हमें एक फोटो या मूर्ति कुछ भी चुनना पड़ेगा जिसके आधार पे हम रूप ध्यान करें। तो एक फोटो या रूप ध्यान को उसके जिसके आधार पे आप रूप ध्यान करेंगे, उसको अच्छे से देखिए, अक्सर देखो, उसको देखो उसमें कैसा उनका रूप है, कैसी उनकी आंखें हैं, कैसा उनका श्रृंगार है, क्या वो पहने हुए। जब तुम ध्यान करो तो मूर्ति का ध्यान नहीं करना। आ रही है। फोटो का ध्यान नहीं करना। आ रही है, आ रही है। फोटो या रूप ध्यान, उसका मूर्ति का रूप ध्यान नहीं करना है। रूप ध्यान सोचो कि वो जो फोटो में हमने देखा था युगल सरकार को, वही साक्षात मेरे सामने खड़े हो गए। उनका पीतांबर लहरा रहा है, उनके मस्तक पर मोरपंख है, वो हिल रहा है, उनके कुंडल हिल रहे हैं, उनके मुख पर बड़ा तेज है, वो मेरी ओर देख रहे हैं, बड़े प्रेम से देख रहे हैं, मैं उनके चरणों में गिरकर प्रणाम कर रही हूँ, इत्यादि भाव बनाते हैं। उनको लाइव फॉर्म में उनका ध्यान करो। फोटो का ध्यान नहीं करना है, मूर्ति का ध्यान नहीं करना है। मूर्ति या फोटो को तो आधार बनाना है, ताकि तुम जब भी ध्यान करो राधा कृष्ण का, तो उसी रूप का ध्यान करो। जब तुम एक ही रूप का बार बार ध्यान करोगे, रोज वही रूप का ध्यान करोगे, तो भगवान का एक रूप तुम्हारे मन में एकदम बस जाएगा। तो तुम जब भी और जहां भी रूप ध्यान करना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से रूप ध्यान होने लग जाएगा। नहीं दीदी जी, रूप ध्यान तो हो जाता है दीदी, रूप ध्यान तो अच्छा बनता है, कभी कभी नहीं बनता है, कभी कभी खूब अच्छा ध्यान भी बनता है, कभी तो सबका गड़बड़ होता है, इसीलिए तो साधना की जरूरत है। कभी जब कभी तक तो बिल्कुल मन लगना जाए, देखिए पहले हम साधना करते हैं मन को लगाने के लिए, फिर धीरे धीरे लगने लग जाता है। अब आपकी ये स्टेज तो आ गई कि आपका मन लगने लगा है,
हर समय नहीं लगता, लेकिन लगने लगा, ये बड़ी बात है कि आपको रूप ध्यान होने लगा है। ये होते होते एक ऐसी भी स्टेज आएगी जब आपका मन पूरी तरह लग जाएगा। आप चाहे 1000 आदमियों के बीच में बैठे हो, घोर कोलाहल में बैठे हो, तो भी आप जब चाहेंगे आपको भगवान का ध्यान हो जाएगा। ये भाव भक्ति में पहुंचने पर होगा। उसको भाव भक्ति की शुरुआत कहते हैं कि मन लग गया। अभी तो हम लगाने के लिए मेहनत कर रहे थे, अब मन लग गया। अब कोई चिंता नहीं है, हम जहां भी बैठे जब भी हम अपना रूप ध्यान कर सकते हैं, वो स्थिति आ जाएगी। तो बस अपना साधना बढ़ाते जाओ, ये भी होगा, ऐसा भी होगा आगे चलकर कि आप जहां चाहेंगे जब चाहेंगे रूप ध्यान हो जाएगा। प्रैक्टिस से होगा, होगा सब कुछ। ओके, राधे Thank राधे। you. We have very limited time. We just have 4 minutes left. तो तृप्ति, आप जल्दी से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राधे राधे दीदी। राधे राधे। आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है। राधे राधे राधे। तो मैं एक बार भागवत महापुराण में पढ़ा था कि वो वहां पे गजराज और जो क्रोकोडाइल है उनके बीच में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, वो भी 1000 साल के लिए। वो मतलब ऐसे 1000 साल तक दोनों का युद्ध चला था क्या? भागवत महापुराण में लिखा है सर। अब भागवत महापुराण में लिखा है तो चला ही होगा ना। पहले तो लोगों की लाइफ भी बहुत लंबी लंबी होती थी। और सबसे इसीलिए तो महाराज जी कहते हैं ना कि कोई ग्रंथ मत पढ़ो। अगर आप महाराज की फिलॉसफी में सब ग्रंथों का सार जब है तो आप ये सब पढ़ेंगे तो बुद्धि के परे वाली बात है ना। हम लोग की तो 100 साल की उम्र नहीं होती है, अब वो 1000 साल तक केवल युद्ध होता रहा तो उम्र कितनी होगी उनकी। तो ये हमारी बुद्धि से बाहर की बात है। इसलिए बेटा ये सब चीजें पढ़ो ही मत। जो करना है वो पढ़ो। जो करना क्या है वो महाराज जी ने लिख दिया है प्रेम रस सिद्धांत में। उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, उसकी उम्र थी कि नहीं थी, वो सब पचड़ों में पढ़ो ही मत। अपना देखो, हमारी उम्र बड़ी थोड़ी है और बहुत बड़ी चीज हमें प्राप्त करनी है महाराज जी की कृपा से। तो उसके लिए हम बस कोशिश करते रहे, सारा टाइम उसी में दें हम, बजाय इसके कि और चीजों में ध्यान लगाएं। जी दीदी। जी दीदी, मेरा और एक प्रश्न है। जैसे कि देखिए, ये सतयुग में लोगों का धर्मपरायण मतलब रहते हैं और कलयुग में सेम जीवात्मा है और उनका संस्कार कैसे चेंज हो जाता है और बहुत मतलब पाप प्रवृत्ति के हो जाते हैं, ऐसा प्रभाव होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये हर युग में धीरे धीरे करके धर्म के जो पद हैं चार वो घटते चले जाते हैं। तो कलयुग में जैसे सतयुग में सात्विक वृत्ति प्रमुख हुआ करती थी, तो त्रेता में सात्विक कम और सात्विक के साथ साथ राजस, थोड़ा थोड़ा राजस आ गया। सात्विक वृत्ति त्रेता में भी थी, उसमें राजस जुड़ गया। फिर द्वापर में राजस अधिक हो गया और सात्विक खत्म हो गया और थोड़ा बहुत कलयुग का वो प्रभाव आने लगा। और कलयुग में सात्विक राजस दोनों बहुत कम हो गए और तामस गुण अधिक बढ़ गया। ये युगों का प्रभाव है, 4 युगों का। तो इसलिए सबसे कम सात्विक वृत्ति, धर्मपरायणता वगैरह ये कलयुग में है। लेकिन कलयुग में कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो कोई बात न्याय नहीं हुआ कि भाई कलयुग में तो बिल्कुल ही नहीं है धर्मपरायण है, भगवान अन्याय ही नहीं है। उन्होंने एक चीज बहुत बड़ी दे दी कलयुग में जो किसी युग में किसी को प्राप्त नहीं होती, और उसको स्पष्ट भी किया है भागवत में ही। कलेर दोष निधे राजन नस्ति हे को महान गुण कीर्तना देव तद विष्णु। हजारों, ये तो जो कलयुग है अवगुणों की खान है, निरे अवगुण है इसके अंदर, लेकिन अस्ति है को महान गुण। एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग का, वो क्या कि कीर्तना देव तद विष्णु मुक्त संगा परम विजय। केवल कीर्तन से, जो तुम कहीं बैठ के कर सकते हो। जी दीदी। तपश्चर्या करनी पड़ती थी हजारों वर्ष तक, तब जाकर उनको भगवत प्राप्ति होती थी। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे
तब उनको भगवत प्राप्ति होती थी। द्वापर में संतों की सेवा से भगवत प्राप्ति होती थी। तो कुछ नहीं करना है, एकांत में कहीं भी बैठे हो तुम, अच्छी जगह पर, बुरी जगह पर, पवित्र जगह पर, अपवित्र जगह पर, पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, कहीं भी बैठे हो, भगवान का नाम लो, उसका फल मिलेगा। तुम ये नहीं कहा जाएगा है जी तुमने नाम तो लिया लेकिन गंदी जगह पे बैठ के नाम लिया तो तुमको फल नहीं मिलेगा राम नाम लेने का। ना ना, कहीं भी बैठ के लो नाम, कैसी भी अवस्था में हो, लेटे हो बिस्तर के ऊपर, भगवान का नाम लो, भगवान के नाम लेने का फल मिलेगा तुम्हें। यानी नाम लेने मात्र से ही, कीर्तन करने मात्र से ही तुम्हें भगवत प्राप्ति हो सकती है। कुछ सामग्री नहीं चाहिए, कहीं नहीं आना जाना, कुछ नहीं, उनका बस सही ढंग से नाम लो, हृदय से नाम पुकारो। जी दीदी, भैया धन्यवाद दीदी। वैसे तो 9 o'clock हो चुके हैं, बट हमारी दीदी बहुत कृपालु हैं, इसीलिए एक लास्ट हम क्वेश्चन अलाउ कर देंगे। सो योगेश भैया आप क्विकली अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दीदी राधे राधे। भैया दीदी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम कुसंग, कभी कभी कुसंग हो जाता है, हम गलत चिंतन करते हैं, जैसे महाराज जी को कष्ट हो रहा है, वो हमें वो फील होता है ना, अंदर से पेन नहीं होता, वो प्रेम से नहीं, वो क्या है दीदी, अहंकार से होता है क्या, ये सवाल का समझ। मन गंदा है इसलिए जाता है और फील भी होता है कि महाराज जी को कष्ट हो रहा होगा। हाँ, ऊपर से लगता है पर अंदर से पेन नहीं होता, महाराज जी को कष्ट हो रहा है ऐसे करके, अंदर से पेन नहीं होता, जैसे होता है ना अपनेपन, ऐसा नहीं होता। तो एटलीस्ट आपको ये फीलिंग तो है कि हमारे अंदर प्रेम नहीं हो रहा है, महाराज जी के प्रति अपराध कर रहे हैं, महाराज जी को कष्ट हो रहा होगा, ये भी बड़ी बात है। बहुत से लोग तो ऐसे जिनको ये फीलिंग भी नहीं होती, अपराध भी करते जाते हैं और कोई फीलिंग भी नहीं होती कि हमने कोई अपराध किया। आप भाग्यशाली हैं कि आपको कम से कम इतनी फीलिंग तो होती है। अब इसी फीलिंग को और बढ़ाइए और साधना बढ़ाइए, अपनी साधना को बढ़ाते हुए ये फीलिंग बढ़ाइए कि हमें महाराज जी को कष्ट नहीं देना है। महाराज जी तब खुश होते हैं जब हम शुद्ध मन से भगवान का नाम लेते हैं, रूप ध्यान करते हैं, राधे राधे बोलते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करने से वो खुश हो जाते हैं। तो हम कम से कम इतना अभ्यास तो करें ना कि हर समय राधा राधे बोलने का मन में चेष्टा करें और जहां भी जाएं ये फील करें कि वो हमारे साथ है। बस इतनी साधना से आप प्रारंभ करिए और ये मन में हमेशा भाव जो आपके अंदर है ऑलरेडी, इसी को बढ़ाइए कि महाराज जी को कष्ट नहीं देना। जिससे उन्हें कष्ट है, जिससे भी उन्हें कष्ट होता है, वो हमें नहीं करना है। दीदी दूसरा एक छोटा सा प्रश्न, जैसे दीदी मैंने कभी महाराज जी को देखा नहीं, जैसे हम महाराज जी के आगे, फोटो के आगे बैठे, महाराज जी मुझे आपके साथ अपनापन नहीं हो रहा, ये दे दीजिए हम कृपा, वो अनन्य के खिलाफ तो नहीं होता ना दीदी, वो भी अनन्य होता है कि क्या होता है? निष्काम सॉरी, निष्कामता होता है कि नहीं? हमारे हैं महाराज जी, हमारे हैं, हमने उनको अपना गुरु मान लिया तो उनको हमारे साथ हर समय रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने उन्हें गुरु माना और क्योंकि आप उनकी बताई हुई साधना कर रहे हैं, इसलिए वो आपके साथ हैं, उनको रहना ही पड़ेगा आपके साथ, सदा आपके साथ हैं। ये विश्वास बढ़ाइए अपना, वो आपका योगक्षेम वहन कर रहे हैं, ये विश्वास बढ़ाइए अपना। दीदी जो अपनापन वो नहीं हो पाता दीदी, जैसे अपने ये वो नहीं होता, फीलिंग बढ़ाते जाइए, अपनापन भी हो जाएगा। जब आपने उन्हें गुरु माना है, आपके वो गुरु, अपनापन क्यों नहीं होगा? हाँ दीदी, सोचिए वही है हमारे, हाँ, उनकी ही कृपा से हमको भगवत प्राप्ति होगी, हो जाएगा अपनापन। थैंक यू दीदी, राधे राधे। योगेश भैया, we have lot of questions, but हम अब अगले वीक दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। We just have to wait for one more week and we'll be able to answer all your questions. और आज मैं बहुत सारे न्यू गेस्ट देख रही हूँ, I saw ईश अरोड़ा and नीरज भैया and all. ऐसे ही आप सब लोग encourage करते रहिए अपने friends, family को to come and join so they can also learn from this session. Thank you so much everyone for joining, and you could all unmute and say Radhe Radhe to Didi. Thank you. राधे राधे जी, राधे 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 सरकार की जय। राधे।